Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. Today we are going to discuss few questions of coordination compounds in JEE Main 2021. So let us start with our first question. The metal d orbital that are directly facing the ligands in K3COCN6. So K3COCN6 is an octahedral complex, and in case of octahedral complex, if we apply crystal field theory, according to crystal field theory, the splitting of the 5d orbitals takes place in this way. So we split into two sets of orbital. The top orbital is known as EZ orbital and the lower one is known as T2G orbital. So in case of EG orbitals, we write that these are dx square y square orbitals and dz square orbitals. These orbitals are also known as axial orbitals, while the non-axial orbitals are dx y dy z and dzx. So why this type of splitting is taking place? Because in an octahedral complex, when the ligand is moving towards the central metal atom, they are moving towards the axial position. They will move along the z-axis, x-axis and y-axis, and because of that there is more repulsion in those orbitals which are present along the axial position. So we can say here that if this is z-axis, this will be the y-axis and this is x-axis. So the axial orbital, we are talking about d orbitals. So one is dx square y square orbital, which is along x and y axis, and the other one is dz square orbital. Basically dz square orbital is d2 times of z square minus x square plus y square. So it is along z axis as well as x and y axis, right? So from there we can see that if the ligands are approaching towards the central atom through the z-axis, there is more repulsion on the electrons of d orbitals which are present along the z-axis, and because of that there will be more repulsion and their energy is going to increase, and because of that we are writing that dx square y square and dz square will be in the set of EG orbitals and this is in the set of T2G orbitals, right? So from there we can write that the answer for this question will be 4. Moving to the next question. Mn2CO10 is an organometallic compound due to the presence of, so we know that organometallic compound के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि एक मेटल और कार्बन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से हो उसके बीच में बॉन्ड हो. एटलीस्ट वन केमिकल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन द मेटल एंड द कार्बन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. In some cases, in place of the carbon of organic compound, it can be a carbon of carbonyl or it may be a carbon of cyanide ion. In some cases, it is also a carbon of carbide ion. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो metal carbon bond होना चाहिए और the pair of metal ions that can give a spin only magnetic moment of 3.9 Bose magnetron for the complex MH2O 6 times Cl2 is. So the first thing here is if the magnetic moment is given and if you remove the decimal part, you will get the number of unpaired electrons. So generally the number of unpaired electrons is denoted by capital N. So in this complex the number of unpaired electrons should be 3. If we try to find out the first option is correct or not, so in case of chromium, if I am writing the electronic configuration of chromium atom, it should be 3d5 4s1. But here chromium is present in +2 oxidation state. So for chromium +2, if I write that what is the electronic configuration, it should be 3d4 and 4s0. So in this case, since it is an octahedral complex and water is a weak field ligand, right? With chromium, the crystal field splitting energy will be less than the mean pairing energy, and on the basis of that, if we fill the electrons, first we fill the electrons in T2G orbitals. So 1 electron to each of these orbitals, and there are 4 electrons. Then 1 electron will go
in Eg orbital. So the number of unpaired electrons will be 4. So first option will be wrong. This option cannot be possible. Moving to the second option. Second option में vanadium है, scandium, titanium, vanadium. So if we write the electronic configuration of vanadium, it is 3d3 4s2. So vanadium is present in +2 oxidation state. So vanadium 2 plus, we can write the electronic configuration as 3d3 and 4s0. So either it is a weak field ligand or a strong field ligand, or delta naught is greater than pairing energy or delta naught is less than pairing energy. If only 3 electrons are there, it will always present in T2G orbital. So from here we can say that the number of unpaired electrons will be 3. Moving to the cobalt 2 plus ion, cobalt का electronic configuration होता है 3d7 4s2. Now cobalt is present in +2 oxidation state. So here it will be 3d7 4s0, and since with respect to cobalt, when cobalt is present in +2 oxidation state and water is there, the crystal field splitting energy is less than mean pairing energy, right? So पहले हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे and then pairing will take place. So there are 7 electrons. First we fill 1 electron to each orbital. T2G में पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, फिर हम EG ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे. Now we'll do pairing. So there are 7 electrons. So from here also the number of unpaired electrons is equal to 3. So the answer for this question will be 2. In the same way we can find out for like iron +2. अगर हम iron +2 के लिए चेक करते हैं, in case of iron the electronic configuration is 3d6 4s2. If we remove 2 electrons, so in case of iron +2 the electronic configuration is 3d6 4s0. 6 electrons हैं और weak field ligand है. So we can say that the mean pairing energy will be greater than splitting energy. तो अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं 1 2 3 4 5 and this is the 6 electrons, so the number of unpaired electrons will be 4. So from here we'll prove that this is not possible, this is not possible. The answer for question number 3 will be 2. Fourth question is the magnetic moment of an octahedral homoleptic manganese second complex is 5.9 Bohr's magneton. The suitable ligand for this complex is. तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैग्नीज अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d5 4s2. When manganese is present in +2 oxidation state, we can write the electronic configuration as 3d5 4s0. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, राइट. एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.9, अगर हम इसका डेसिमल पार्ट हटा देंगे तो हमें ये, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड टू नो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हेनेवर मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन. And if you remove the fractional part, whatever the integral part it is coming, right, that will be tell you about the number of unpaired electrons. So here the number of unpaired electrons will be 5. So this could be possible because there are 5 electrons and all the electrons are unpaired, right. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि crystal field splitting energy should be less than मीन पेयरिंग एनर्जी. अब ये जितने भी लिगेंड्स दे रखे हैं, इन लिगेंड्स में अगर हम देखें कि इसमें से सबसे वीक फील्ड लिगेंड कौन सा होगा, राइट. सो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज NCS minus will be relatively weaker ligand, right. And if we have to choose that, which is the best option where delta naught is less than mean pairing energy, so second will give you the right answer. Moving to the next question. तो next question है the number of bridging carbonyl ligands and cobalt bond in CO2 CO8 respectively are. तो ये जो मेटल कार्बोनिल्स हैं NCERT में दे रखे हैं, आप इनके स्ट्रक्चर्स देख लिए. बहुत सारे जो 2-3 तरह के मेटल कार्बोनिल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे NiCO4, right. Then it is given FeCO5, then Mn2CO10 and this one CO2 CO8. तो NCERT में इसका केवल एक ही स्ट्रक्चर दे रखा है.
अगर हम CO2 CO8 के बारे में डिस्कस करें तो CO2 CO8 अपने प्योर फॉर्म में इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, right? When it is existing in solid state, it means it is existing in its pure form. The structure of this metal carbonyl is, there is a metal bond present in this, and there are 2 bridge carbonyl molecules and there are 6 terminal carbonyl molecules. तो ये structure NCERT में दे रखा है, and if we know this structure, from this structure we can find out that जो इसमें metal bond है, कोबाल्ट जो बॉन्ड है that is 1 in number, and ब्रिजिंग ligands की अगर हम बात करें तो ब्रिजिंग ligands यहाँ पे there are 2 in number. So the number of bridging carbonyl ligands and cobalt metallic bond in CO2 CO8 respectively will be 2 and 1, right? तो यहाँ से हमें ये आंसर मिल गया, द आंसर विल बी 4. बट इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो ये मेटल कार्बोनिल है ये सॉलिड स्टेट में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन एक्वस मीडियम. एक्वस मीडियम में इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. इन दैट केस देयर इज अ मेटल बॉन्ड बिटवीन 2 कोबाल्ट एटम्स, एंड ये दोनों तरफ जो है there will be 4 terminal carbonyl groups attached to both metals, right? तो ये इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, but that structure will be possible in aqueous medium. ये aqueous medium में possible है. यहाँ पे कोई भी bridging ligands नहीं है, right? But if you go through the option, यहाँ पे कोई भी, जैसे ये पहला ऑप्शन है जिसमें इन्होंने दे रखा है कि ब्रिजिंग ligands will be 0, बट मेटल बॉन्ड्स जो हैं वो 2 नहीं है, मेटल बॉन्ड 1 है. तो फ्रॉम देयर ऑल्सो विल गेट दिस आंसर. सपोज कि ये एक ऑप्शन होता जिसमें उन्होंने लिखा होता कि द नंबर ऑफ ब्रिजिंग ligands विल बी 0 एंड द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स विल बी 1, देन व्हाट यू विल चूज? सिंस if they are not saying that this complex is present in aqueous medium, they are talking about the complex. If they are not saying in aqueous medium, they are talking about the pure substance. प्योर सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो सॉलिड स्टेट में जब एग्जिस्ट करेगा तो यही आंसर आएगा. तो अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, और एक ऑप्शन यहाँ पे 0 and 1 होता है, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव दिस ओनली एज आंसर, बिकॉज दे आर नॉट सेइंग दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज एग्जिस्टिंग इन एक्वस मीडियम. जब एक्वस मीडियम में होगा तो ये स्ट्रक्चर होगा. ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा है, बट मेनी बुक्स एंड मेनी पीपल टीच दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी लेवल पे बच्चे को केवल यही पता है, राइट, और मेंस के हिसाब से देखा जाए तो दिस विल बी करेक्ट. सो इन एनी वे, whenever they are going to ask question about this complex, you should be very careful, you should not do mistake. By using your common sense you can give the right answer. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, राइट. तो अभी यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कौन से आइसोमर्स, राइट. वी हैव टू गिव द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स. सो वी हैव टू सी दैट कि इसमें कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज दे हैव मेंशन दैट द कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम लीगेंड की बात करें तो SCN माइनस जो है वो एम्बीडेंटेड लीगेंड है, NO2 इज एन एम्बीडेंटेड लीगेंड, राइट. सो दिस कॉम्प्लेक्स कैन शो लिंकेज आइसोमर्स. और हमें पता है कि क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है एंड दिस इज MABCD, बिकॉज चारों लीगेंड डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है. तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अगर कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और उससे 4 लीगेंड अटैच्ड है और चारों लीगेंड अलग अलग हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो सकते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. बिकॉज अगर मैंने ये कहा कि ये A है तो इसकी अपोजिट पोजीशन को हम कितने तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हैं? तो A की अपोजिट पोजीशन पे B हो सकता है, या A की अपोजिट पोजीशन पे C हो सकता है, या A की अपोजिट पोजीशन पे D हो सकता है, राइट. सो देयर आर 3 ways by which we can occupy the opposite position of A. तो इसमें हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 होते हैं. नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट
कि इसमें कितने लिंकेज आइसोमर्स हम बना सकते हैं। 2 एम्बिडेंटेड लिगेंड है हमारे पास, तो आइए हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि MfCl, और ये जैसा लिखा है उसी तरह से हम रहने दें। तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो दे रखा है वही कंपाउंड है। दूसरा ये हो सकता है कि हम किसी एक एम्बिडेंटेड लिगेंड को, इसकी पोजीशन जो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है उसको चेंज कर दें। देन द अदर पॉसिबिलिटी इज दैट दिस कैन फॉर्म MfCl, और यहाँ पे हम NCS लिख देते हैं। दिस विल बी NO2। ये दूसरे तरह का एम्बिडेंटेड लिगेंड बन गया। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हम दूसरे वाले को चेंज करें, इसको एज इट इज रहने दें HCN, और यहाँ पे हम ONO लिख देते हैं। और फोर्थ है कि हम दोनों को बदल दें। तो इन दैट केस वी कैन राइट MfCl एंड दिस विल बी NCS, ये NCS होगा, एंड दिस विल बी ONO। तो ये 4 एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हम लिख सकते हैं, और हर एक केस में हमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। इन चारों केसेस में हमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी मिलेंगे। तो इफ वी टोटल देम, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हियर विल बी 12, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी देखने थे और फिर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। हमें पता है कि इस स्क्वायर प्लेनर, इस पर्टिकुलर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देयर विल नॉट बी एनी ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल तो होंगे लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी 12। तो इसका आंसर होना चाहिए 1। आगे बढ़ते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट, सो दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। विल्किंसन कैटलिस्ट जो है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हो। इट इज यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स और ओलेफिन्स, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें याद हो कि ये क्या है विल्किंसन कैटलिस्ट, और इसका अगर हमसे IUPAC नेम पूछा जाए तो वो भी हमें पता होना चाहिए। सो विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो ट्राइफिनाइल रोडियम क्लोराइड है, राइट। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसका आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज इट्स IUPAC नेम, तो 2 तरह के लिगेंड्स हैं, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं, तो क्लोराइडो एंड ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, राइट। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोराइडो पहले आएगा। तो अगर हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो इट शुड बी क्लोराइडो। देन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में ऑलरेडी ट्राई वर्ड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज ट्रिस टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। देन कॉमन ब्रैकेट में हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का नाम लिख लेते हैं, ट्राइफिनाइल phosphine. Then we'll write the central atom. The central atom will be rhodium, क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो कॉमन नेम ही लिखेंगे इसका। So that will be rhodium। और रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये न्यूट्रल लिगेंड है और क्लोराइड आयन इस पे एक नेगेटिव है, तो रोडियम इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस इज द IUPAC नेम, क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1 कॉम्प्लेक्स। इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो आगे से आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉम्प्लेक्सेस CrH2O, यहाँ पे ये H2O 6 टाइम्स है, Cl3 एंड CrNH3 6 टाइम्स Cl3। A और B ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, सेंट्रल एटम सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का सेम है क्योंकि ये दोनों जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। बट हमें पता है कि वाटर और NH3 में दिस इज अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन दिस, राइट। सो अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें तो क्रिस्टल फील्ड दोनों ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, सो डेल्टा नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स A शुड बी लेस देन डेल्टा नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स B। सो इन 2 कॉम्प्लेक्सेस A और B के कलर दे रखे हैं, द फर्स्ट वन इज वॉयलेट इन कलर एंड द सेकेंड वन इज येलो इन कलर रिस्पेक्टिवली। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखें कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे आर आस्किंग, so the first statement is delta naught value of A is less than that of B. That seems to be the correct statement, right? ये statement correct है, हमें incorrect के बारे में बताना है।
Delta naught value of A and B are calculated from the energy of violet and yellow light respectively. Violet और yellow तो उनका कलर है, बट ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट इज रिलेटेड टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, राइट. सो दिस इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा एब्जॉर्ब. ये जो कलर दिखाई दे रहा है वो लैम्डा एमिटेड है एंड दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लैम्डा एब्जॉर्ब. तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. दे आर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं. बोथ एब्जॉर्ब एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, दैट इज करेक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट है बोथ आर पैरामैग्नेटिक विद देयर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम दोनों को देखें तो दोनों जो हैं वो क्रोमियम सेंट्रल एटम है और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अगर मैं क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d5 4s1. If I remove 3 electrons, it will be 3d3. तो 3d3 या तो वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो. अगर हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस केस में केवल T2G में एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा एंड आइदर इट इज वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर एंड दे आर 3 इन नंबर्स, राइट. तो ये भी एक करेक्ट statement है. so from here we can say that second will be the correct answer. Moving to the next question. The highest value of calculated spin only magnetic moment among all the transition metal complexes will be, or metal complexes is. तो हमें पता है कि इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जब हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उनकी स्प्लिटिंग होगी और स्प्लिटिंग की वजह से डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, इफ इट इज एन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो स्प्लिटिंग डिफरेंट होगी. इफ इट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देन स्प्लिटिंग विल बी डिफरेंट. इफ इट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देन स्प्लिटिंग विल बी डिफरेंट. सो द मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स हैं तो मैक्सिमम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो 5 हो सकते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5. तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वी कैन राइट दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n is 5, n plus 2 that is 7, so that is equal to √35, so which is very near to √36, right. तो 6 के नज़दीक, so first option will be the answer. So I hope you enjoy this discussion. अगर आपको इस तरह के और भी discussions देखने हैं, lectures देखने हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. Thank you very much. Please don't forget to like and subscribe our channel.